Hello everyone, good evening, welcome to InstaSol live session. Again, myself Himanshu Parikh and I am physics expert at InstaSol. So how are you all? Who all are present today? Say me hi in the chat box. Hello Ashutosh, hello Tejas, hello Shailik, hello Tarun, Nishchal, Ritu. I can see a lot of people today. Good evening everyone. Yes. Okay guys, so as you can see, our today's topic is simple harmonic motion, and I have already taken one session on simple harmonic motion. In that session actually we didn't solve much questions, right? I was focusing more on the theory part, right? But in today's lecture I would be focusing more on the numerical portion, okay? And after that I'll take one or two more sessions taking simple harmonic motion, simple pendulum case, right? And then 2 SHM in the perpendicular direction, what would be the final case, right? So sir, मुझे भी hello बोल दीजिए. Hello Ayush, how are you? Okay guys, sir, how should gain out of best out of this marks in this chapter, right? So देखिए, if I tell you the statistics of this year in JEE Mains, then directly they have not asked a single question from simple harmonic motion. But अब देखिए, अच्छी बात क्या है? Now there are 6 or 7 questions where they have mixed simple harmonic motion, including overshifts, right? So simple harmonic motion is very difficult chapter तो मैं नहीं कहूँगा, but काफ़ी important chapter है, because the concept of simple harmonic motion are used in each and every chapter. Like waves में use होगा, then they can merge with magnetic field, right? Hello Ayush Kumar, right? Okay, so sir, please in Hindi. Okay, then I'll try to speak in both Hindi and English. But I have one information for you guys. It's a very important information, and just a second. So guys, just a second, just give me a second. Yep. So now we are live in Telegram also. Like the channel name is IIT JEE InstaSol, and the link is this t.me/instajee, right? So we are on Telegram also. Now what is the importance of this group? Like जो भी classes हो रही है InstaSol पे, all the PDFs, everything you would be getting there, right? So all the important information regarding the classes, schedule and everything, PDFs, you will be getting here on the official Telegram channel of InstaSol, right? The link is this t.me/instajee. So you do one thing right after this class, याद से करना है सबको, भूलना नहीं है. You join this group, the Telegram group t.me/instajee, right? Yes everyone. So how many people have already joined this group, Telegram group? Tell me in the chat box. How many people have already joined this group? Yes. I'm good. I'm good, Bajrang Bali. Okay. So now let's start with the session. Okay. So, नहीं किया है. So Sapna, you do one thing. You should join this group as soon as possible, because all the important information regarding the InstaSol would be communicated through this group, right? Video नहीं चल रहा है. Then you do one thing. You refresh the page, the app, and come back. It will work for you. Okay. Right. चलिए. So now let's go to the question part. Okay, क्लास के बाद ज्वाइन कर लेंगे. परफेक्ट. चलिए, अब देखिए, अभी अपने को आज के सेशन में करना क्या है? टुडे वी वुड बी सॉल्विंग सम क्वेश्चन फ्रॉम the simple harmonic motion, the superposition case, right, which we have already done actually. कि what are the basics, velocity of a particle executing simple harmonic motion, and all these things we have already done. ठीक है. अब मैं आपको एक recall कर देता हूँ कि what all we have studied in the previous session. I told you that force acting on a particle executing simple harmonic motion is F proportional to minus x, right, where x is the distance from mean position, right. So force is basically opposite to the displacement from the mean position. ये basic nature है इस force का, ठीक है. Now the constant of proportionality is k, so this becomes minus kx. And in the last class I proved this equation, if you remember, that if this is the force, then velocity would be omega under root a square minus x square, right? And from here you can write acceleration also, and I told you कि k constant है, और यहाँ से हमने acceleration लिखा था minus omega square x, where omega is the frequency. Okay,
So clear everyone? Any doubt in this? This definition is clear to everyone? The basic things. Sir, F restoring force है ना? Yes, F is the restoring force. ठीक है, चलिए हिंदी में भी कर लेते हैं. तो मैंने आपको ये बताया कि F जो है वो माइनस kx होता है. That's the nature of simple harmonic motion. ठीक है, और V इज इक्वल टू होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. एक्सीलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पार्ट पे. सो बेस्ड ऑन दिस विल टेक वन क्वेश्चन. So the question is like this: a particle is executing simple harmonic motion between x is equal to plus a and x is equal to minus a. The time taken it to go from 0 to a by 2 is t1 and to go from a by 2 to a is t2. Then which one is the correct option? Sir, what is k? K is a constant. देखो f proportional to minus x है तो वहाँ पे k एक constant है. ठीक है. Should I dictate the question once again? Okay, so the question is, देखो मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन है कि ये पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है. ठीक है, और प्लस ए से माइनस ए के बीच में कर रहा है. अब प्लस ए से माइनस ए के बीच में कर रहा है तो एक चीज क्लियर है कि ओरिजिन के अबाउट कर रहा होगा. So this is x is equal to 0. Okay, and this is x is equal to minus a. This is x is equal to plus a. ठीक है, तो वो पार्टिकल पहले इधर जा रहा है, then it is coming back, then he is going in minus a, then he is coming back to origin. ठीक है, सो ऐसा कुछ सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है. ठीक है, k का नाम है कांस्टेंट. अगर देखिए अब मैं आपको एक स्प्रिंग के बारे में बात करें तो बेसिकली ये हुक्स लॉ है कि f इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स. ठीक है, तो वहाँ पे वो स्प्रिंग का कांस्टेंट हो जाएगा. ठीक है, सो ये नेचर ऑफ फोर्स है ये. सर आई मिस्ड योर एसएचएम लेक्चर 1, देन व्हाट शुड बी डन? बहुत सिंपल है, आप ऐप पे सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप वो लेक्चर्स देख सकते हैं. ठीक है, चलिए अब आते हैं फिर से क्वेश्चन पे. सो क्वेश्चन है कि पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है एसएचएम इन बिटवीन माइनस ए एंड प्लस ए. ठीक है, टाइम टेकन टू गो फ्रॉम 0 टू a by 2 is t1 and to go from a by 2 to t2 is to go from a by 2 to a is t2. तो t1 और t2 के बीच में रिलेशन क्या होगा? ठीक है, तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. चलिए रिप्लाई बताइए, क्या आंसर आ रहा है आपको? सर आई एम न्यू हियर. That's great. You have joined InstaSol just now. Welcome to InstaSol. So you can watch all the lectures here. Not understand. T1 would be equal to T2. That's wrong answer. Someone says T2 greater than T1. I don't think so. क्या reason है T2 greater than T1? B. T1 greater than T2. Okay. So Mehreen Pavez says B is the right answer. T1 is greater than T2. चलिए, what is the reason, guys? कुछ लोगों को तो क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन समझा देते हैं पहले. ओके, सो क्वेश्चन समझाता हूं पहले मैं. क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल है एंड दिस पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन बिटवीन x इज इक्वल टू माइनस ए टू x इज इक्वल टू प्लस ए. ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला कि जब पार्टिकल x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू प्लस ए बाई 2 पे जाता है तो यहां तक जाने में टाइम कितना लगा पार्टिकल को? t1. ठीक है, कितना टाइम लगा? t1. ओके, और अब a बाई 2 से प्लस ए तक जाने में कितना टाइम लगा? t2. ठीक है, 0 से a बाई 2 तक जाने में टाइम लगा t1 और a बाई 2 से a तक जाने में टाइम लगा a. अब यहाँ पे बस ये काफ़ी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है. देखिए कैसे, v होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट? v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. एज यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ x, मतलब इफ यू गो अवे फ्रॉम द मीन पोजिशन दिस x इंक्रीजेस. x इंक्रीज हुआ इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीजेस. ठीक है, इफ x increases then velocity decreases. तो इसका मतलब क्या हुआ? As you go away from the mean position, the velocity will decrease.
तो जब पार्टिकल a/2 से a की तरफ जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कम होगी कंपैरेटिव टू दिस रीजन 0 से a/2। ठीक है, तो ये वाला वो जल्दी कवर कर लेगा और ये वाला थोड़ा सा लेट कवर होगा। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि T1 वुड बी लेसर देन T2। T1 वुड बी लेसर देन T2। ठीक है, तो बताइए कितने लोगों का ये आंसर आ गया था? चलिए, तो कुछ लोग अभी भी ए बोल रहे हैं। ए कैसे आ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा आपका आंसर। अभी कोई डाउट हो तो इसमें पूछो। सो T1 is less than A2, T2 that is A। चलिए सही है, ठीक है, अब समझ आ गया। ठीक है सर, आई वॉज रोंग। चलिए कोई बात नहीं, T1 इज लेस देन T2, सो A इज द राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो अगला क्वेश्चन काफी अच्छा है। ये जेई का क्वेश्चन है एंड इट्स ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, ये जेई एडवांस में आया हुआ है ये क्वेश्चन एंड इट्स ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। Right, so I'll dictate the question once again. 3 simple harmonic motions in the same direction, each of amplitude A and periodic time T, मतलब time period, are superposed. If each differs in phase from the next by pi/4, then 4 ऑप्शन है आपके पास। अब क्वेश्चन क्या है कि 3 सिंपल हार्मोनिक मोशन है। देखो ये सुपरपोजिशन पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो एक पार्टिकल है, इट इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे ऐसे जा रहा हो, है ना। अब एक और एसएचएम डाल दिया इसके ऊपर, मतलब कि पहले एसएचएम के साथ में दूसरे एसएचएम को मर्ज कर दिया। एक ब्लॉक को मान लो वो पहले x इक्वल टू a sin ओमेगा t फॉलो कर रहा था, अब उस पर x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5 भी डाल दिया। ठीक है, तो रिजल्टेंट मोशन कैसा होगा? तो 2 वाले तो सबने पढ़े हैं, मैं यहाँ पे 3 लेके आया हूँ कि वी हैव 3 सिंपल हार्मोनिक मोशंस इन सेम डायरेक्शन। तो बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? यस, मर्ज कर दिया, बिल्कुल। सर मर्ज कर दिया, यस बिल्कुल मर्ज कर दिया। आंसर इज ए। नो, देखिए इसके मल्टीपल आंसर्स हैं, इट्स ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सो यू विल हैव मोर देन वन आंसर करेक्ट। Yep, so shall I solve this question now? C is also correct. ठीक है, so किसी ने कहा कि सर A is correct and some people says कि सर C is correct. ठीक है, trying, Jana is saying sir trying. ठीक है Jana, okay, sir answer is B. ठीक है, देखते हैं। ओके, हाउ मेनी पीपल से डी इज द राइट आंसर? मतलब डी तो एक आंसर सही होगा ही होगा। डी, द रिजल्टिंग मोशन इज नॉट सिंपल हार्मोनिक। सर कोई 12 सीबीएसई का सैंपल पेपर देना, ये तो बहुत सारे हैं साइट्स पे, मतलब आप गूगल करो, आपको काफ़ी ऑनलाइन वेबसाइट्स मिल जाएगी जहाँ पे सैंपल पेपर अवेलेबल है। जैसे एज फॉर आई नो कि आस्क आईटीज की साइट पे आपको मिल जाएगा। सर ए एंड बी देखते हैं, एक तो मतलब मेजोरिटी में है कि ए तो आ रहा है सभी का, और कोई यहां पे टिकटॉक का प्रमोशन कर रहा है। डी नहीं, डी तो हो ही नहीं सकता। सर ए,
ए एंड सी। चलिए भाई फाइनली जयनाम ने आंसर दिया है सर ए एंड सी। चलिए मैं नाम लिख लेता हूं यहाँ पे, आज नाम लिखा जाएगा जो जो सही आंसर देगा उसके, सही या गलत जो भी हो देखते हैं। जयनाम ने कहा सर ए एंड सी, चलिए देखते हैं। ओके, सादुल दीवान ने कहा कि सर ए एंड डी, चलिए। ओके, आशुतोष ने कहा सर मैं जयनाम के साथ जाऊंगा क्योंकि वो काफी सही आंसर देता है, तो आशु ने कहा ए एंड सी। चलिए, शेख नसीरुद्दीन ने कहा सी ओनली, ओनली बी गौरव ने कहा। तो देखिए जो ओनली ओनली बोल रहे हैं, मैं बता दूं कि मल्टीपल चॉइस है, इसमें एक से ज्यादा आंसर करेक्ट हैं, ठीक है। किरण ने कहा कि सर मैं भी जयनाम के साथ जाऊंगी, उसने ए और सी बोला है। आयुष ने कहा सर मेरा ए। पंकज ने कहा कि मैं सादुल के साथ जाऊंगा, ये पंकज के रिप्लाईज हैं, ठीक है। आज देखते हैं कौन मेजॉरिटी विंस या फिर जो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली सही किया है वो उनकी विजय होती है। चलिए मैं आंसर बता दूं, गौरव ने कहा ए एंड बी, चलिए गौरव का भी लिख देते हैं। अब मैं आंसर बता दूं, चलिए आप देखिए आंसर सही है जो लोग जयनाम के साथ गए थे, जयनाम, आशु एंड किरण, ए एंड सी आर द राइट आंसर्स। तेजस ने भी आखिर में रिप्लाई कर दिया, वेरी गुड। सो 4 पीपल हैव गिवन द राइट आंसर। चलिए अब सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को। तो बेसिकली दिस इज ए लिटिल बिट मैथमेटिक्स इन दिस क्वेश्चन। अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, तो हमेशा पहले एसएचएम का इक्वेशंस लिख दो, ठीक है। अनु ने भी एसी लिख दिया, बढ़िया। चलिए तो हमें पहले तो 3 सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन लेनी होगी विच आर डिफरिंग टू इच अदर बाय पाई बाय 4। बाय व्हाट फेज डिफरेंस? पाई बाय 4। चलिए तो ले लेते हैं 3 इक्वेशंस। x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं पाई बाय 4 का फेज डिफरेंस है, सो a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4। एंड थर्ड इक्वेशन आई विल टेक, सॉरी दिस इज x1 x2 x3, a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। चलिए सर मेरा बी सही है, बी इज रॉन्ग आंसर। अच्छा मेरा भी सही है, हाँ फिर ठीक है। चलिए सो नाउ वी हैव टेकन 3 इक्वेशंस x1 x2 x3। व्हाई आई हैव टेकन a एंड ओमेगा सेम? बिकॉज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। चलिए अब इनको सुपरपोज किया। सुपरपोज का मतलब देखिए क्या होता है, सुपरपोज मीन्स जस्ट ऐड देम, ऐड कर दो तीनों को। सो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है। ओके सो इफ आई ऐड देम व्हाट विल आई गेट? तो देखिए पहले मैं इसको और इसको ले रहा हूं, फर्स्ट और थर्ड टर्म को। अब मेरे से कई बार बोलते हैं कि सर आपने कैसे सोचा कि आप फर्स्ट और थर्ड टर्म को ही पहले पकड़ोगे, क्लब करोगे? तो मैंने ऐसे सोचा कि इफ आई टेक दीज 2 टर्म्स तो क्या होगा, देखिए a साइन ओमेगा टी प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4, ठीक है। आई विल यूज द फॉर्मूला साइन a प्लस साइन b, ठीक है। और वो क्या होगा, 2 साइन a प्लस b बाय 2 डॉट कोस a माइनस b बाय 2। अब जैसे ही मैं यूज करूंगा a प्लस b बाय 2 तो क्या आएगा, ओमेगा टी तो आएगा प्लस पाई बाय 8 बन जाएगा सॉरी पाई बाय 8 बन जाएगा। अब पाई बाय 8 तो वैसे ही इतना अनकंफर्टेबल है देखने में, ठीक है। तो मैं इसलिए उस पर जाऊंगा ही नहीं, इसलिए मैं इन दोनों टर्म्स को लूंगा, बिकॉज इन दोनों टर्म को डिवाइड करने पे ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4 बनेगा। क्लियर? चलिए सो a sin omega t plus a sin omega t plus pi by 2, if I add them what will I get? I am directly writing here 2a sin a plus pi by a plus b by 2 means omega t plus pi by 2 आंसर आएगा omega t plus pi by 4। okay and this term I will write as it is, ठीक है। अच्छा सॉरी ये एक साथ में cos वाला टर्म भी आएगा, so this will be cos a minus b by 2, so omega t minus pi by 2। अब ओमेगा cos के अंदर माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, this will become pi by 4 and this is as it is a sin omega t plus pi by 4। yes up till here any doubt? ठीक है, नो डाउट अप टिल हेयर। चलिए वेरी गुड। अब देखते हैं
दिस इज 1/√2, दिस इज 2, क्या बन जाएगा √2. दिस इज a sin omega t plus pi/4, दिस इज ऑल्सो a sin omega t plus pi/4. कॉमन ले लेंगे. What will I get after taking common? After taking common, I will get x is equal to √2 plus 1 sin omega t plus pi/4. So this is the resultant SHM. मतलब कि इस तरह के 3 SHM ले लें which are differing to each other by a phase difference of pi/4 45 degree. तो resultant SHM कैसा होगा? ऐसा होगा. And what would be the amplitude? √2 plus 1 multiplied a. सर साइन में 2 ओमेगा टी आएगा ना, कहाँ पे? नहीं आएगा 2 ओमेगा टी. देखिए दिस इज साइन ओमेगा टी, दिस इज साइन ओमेगा टी, दिस इज साइन ओमेगा टी. फ्रीक्वेंसी ट्वाइस तो होगी नहीं. अच्छा, अभी जयनाम का एक अच्छा क्वेश्चन है, मैं आता हूँ उस पर. ठीक है, सो वो फेजर मेथड से जा रहे हैं. सर √2 plus 1 मल्टीप्लाइड ए साइन ओमेगा टी प्लस pi/4. तो एम्पलीट्यूड हो गया √2 plus 1 मल्टीप्लाइड ए. चलिए अब चलते हैं ऑप्शंस की तरफ. अब ऑप्शंस को ध्यान से देखिए. ऑप्शन ए इज करेक्ट. ठीक है. बी कह रहा है कि द फेज ऑफ, अच्छा डी तो वैसे ही गलत हो गया, तो डी वाले थोड़ा सा पानी पी लीजिए. डी इज रॉन्ग बिकॉज रिजल्टेंट मोशन सिंपल हार्मोनिक आ रहा है. अब देखते हैं बी को. द फेज ऑफ द रिजल्टेंट मोशन रिलेटिव टू द फर्स्ट इज 90 डिग्री. नहीं, गलत बात. फर्स्ट था x इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी एंड द रिजल्टेंट मोशन इज a sin ओमेगा टी प्लस pi/4. फेज डिफरेंस कितने का? 45 का. तो बी भी गलत हो गया. बी इज ऑल्सो रॉन्ग. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सी. The energy associated with resulting motion is 3 plus 2√2 times the energy associated with any single motion. किसी भी मोशन को उठा लो, if the amplitude is same, तो एनर्जी आएगा हाफ के ए स्क्वायर. ठीक है. और अब जो रिजल्टेंट मोशन आया है उसका एनर्जी कितना आएगा? उसका एनर्जी आएगा हाफ के स्क्वायर रूट ऑफ 2 plus 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड ए स्क्वायर. ठीक है, के तो चेंज हुआ नहीं. अब देखिए इसको स्क्वायर करके देखो, आंसर आएगा 3 plus 2√2 जो कि है ऑप्शन सी. सो ए एंड सी आर द राइट आंसर. अब चलते हैं जयनाम के कमेंट की तरफ. उन्होंने लिखा है कि सर कैन वी ऑल्सो यूज फेजर मेथड टू फाइंड फेज डिफरेंस इन द फाइनल इक्वेशन एंड फाइनल वेव एम्पलीट्यूड. बिल्कुल सही बात है. देखिए एक फेजर मेथड होता है जो आप ऑल्टरनेटिंग करंट में यूज करते हो. ठीक है, इन दैट केस देखो एग्जैक्टली ऑलमोस्ट वैसी सी बात हो गई है. ठीक है, बस थोड़ा सा डिफरेंस हो गया है कि वहां पे pi/2 से वो लीड करते हैं एक दूसरे से. ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या कहना चाहा कि सर तीनों को आप एक वेक्टर मान लो. है नहीं वेक्टर वैसे, मान लो. तो मैंने ठीक है मान लो, इसको बोलते हैं फेजर मेथड. ठीक है, तो वहां पे एक वेक्टर ऐसे ले लेते हो और फिर एक को ऐसे ले लेते हो और दूसरे का फिर pi/4 कर लेते हो. ठीक है, और फिर फेजर मतलब वेक्टर का हेल्प यूज करके हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं. ठीक है, चलिए समझ में आया. फेजर डायग्राम इज सिंपलर देन मैथ्स. हाँ, अब देखिए जिसको वेक्टर अच्छे से आता है उसके लिए तो सिंपल है, वरना मेडिकल वाले बच्चे उसमें भी कहते हैं कि सर ये चैप्टर स्किप करवा दो. ठीक, चलिए व्हाट इज IU थ्योरम, फुल फॉर्म लिखिए इसका. व्हाट इज IU? चलिए ओके. हेलो रजनी. चलिए अब आते हैं आगे. तो एक क्वेश्चन समझ में आया, ए एंड सी आर द राइट आंसर्स. चलिए अब ऐसा ही एक क्वेश्चन और लेते हैं, एग्जैक्टली सिमिलर नहीं, बस थोड़ा सा डिफरेंस. देयर यू हैव टू फिगर आउट कि कौन सा मोशन सिंपल हार्मोनिक होगा, कौन सा नहीं होगा. तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन. I'll dictate the question. The question says कि एक बहुत ही गंदा सा टर्म लिखा हुआ है, मैं वो टर्म पढ़ देता हूँ. A sin स्क्वायर ओमेगा टी प्लस बी कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस सी साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी. साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी रिप्रेजेंट्स SHM4 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, और छोटा सा लिख दिया ऑप्शंस, इसका मतलब मल्टीपल करेक्ट है. ठीक है, तो A B C D यू हैव 4 ऑप्शंस. इधर उधर थ्योरम, ये कैसा थ्योरम हो भैया? ये तो मैंने पढ़ा नहीं है. थोड़ा एक लेक्चर आपको देते हैं इंस्टा सोल पे, इधर उधर थ्योरम पढ़ाइए सभी को. चलिए, सो एवरीवन सोल्व दिस क्वेश्चन नाउ.
बी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं, इसका तो आंसर मुझे भी याद नहीं है, खुद करना पड़ेगा ये तो। सर नन ऑफ द अबोव, ऐसा तो ऑप्शन नहीं दिख रहा है मुझे, इसका मतलब चारों ऑप्शन गलत लिख दिए गए हैं, ए एंड सी। चलिए, तो किसी ने, रजनी ने कहा था ऑप्शन बी, देन सुपर रिसर्चर, अच्छी रिसर्च की, उन्होंने लिखा है ऑप्शन सी। ओके, जयनाम ने कहा है सर नन ऑफ द अबोव। अच्छा, और तेजस्वी सेइंग सर ए एंड सी। आशुतोष को समझ में ही नहीं आ रहा, और आयुष जा रहा है रजनी के साथ कि ऑप्शन बी, और अभिनव भी कह रहा है रजनी के साथ ऑप्शन बी। अब आशुतोष ने आंसर, अब आशुतोष को समझ में आ गया, ए एंड डी। सर आप ही कर दीजिए, ठीक है। और रिया ने फाइनली लिखा है हाय। चलिए आते हैं इस क्वेश्चन पे। सो द इक्वेशन इज ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस बी कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस सी साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी रिप्रेजेंट्स SHM फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। ठीक है, अब जयनाम ने लिखा है बी। ओके, सो देखिए पहले तो ये बताओ, इफ आई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ 2, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, आई कैन डू दैट। सो उसका एडवांटेज क्या है, इफ आई मल्टीप्लाई विथ 2 दिस विल बिकम 2 sin थीटा कोस थीटा एंड दैट इज sin 2 थीटा। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं कि सर c बाय 2, c बाय 2 क्यों, सोचो, sin 2 ओमेगा टी। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, तो एक फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा, वो कहता है कि 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, जिसको हम बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला, या फिर कोस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दो, तो वहां से निकल के आता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सो 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले आओ, कोस 2 थीटा को उधर ले जाओ, तो इधर उधर थ्योरम, राइट। सो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा। ठीक है, सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। इसको क्या लिखेंगे, ए 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी कंप्लीट डिवाइडेड बाय 2, सही है। एंड दिस आई कैन राइट एज बी 1 प्लस कोस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2। बता दो यहां तक कोई डाउट हो तो। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, चलिए अब समझा दे रहे हैं आपको, अब समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इक्वेशन आई हैव रिटन इन दिस फॉर्मेट। अब देखिए, दिस इज a बाय 2, दिस इज b बाय 2, दिस इज c बाय 2। ठीक है, यहाँ पे a बाय 2 है, यहाँ b बाय 2, यहाँ c बाय 2 है। अब इसको मैं पहले जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको साइड में लिख लेता हूँ। सो a बाय 2 प्लस b बाय 2, ठीक है, और अब आ रहा है साथ में माइनस a बाय 2। ठीक है, अच्छा कुछ कॉमन भी ले सकते हैं यहाँ पे, देखो this is minus a by 2 cos 2 omega t, this is b by 2 cos 2 omega t. If you take cos 2 omega t common, what will you get? You will get b minus a by 2. So b minus a by 2 cos 2 omega t. सही है, and this you will write as it is, so this will become c by 2 sin 2 omega t. ठीक है, अब इसको आगे सोल्व नहीं कर सकते सर, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले। यस बिल्कुल, ये तो बहुत बेसिक फॉर्मूलेज हैं। सॉरी सर, माय आंसर इज रॉन्ग, करेक्ट आंसर इज ए। देखते हैं, मैंने कहा जैसे मेरे को याद नहीं है आंसर, देखते हैं। अब देखते हैं, सबसे पहले ऑप्शन डी की तरफ चलते हैं। ए इज इक्वल टू बी, सी इक्वल टू 0 डाल देते हैं। ए इज इक्वल टू बी जैसे डाला ये तो गायब, ठीक है, क्या बचा, सी इक्वल टू 0, ये भी गायब, तो कुछ बचा ही नहीं। क्या बचा, a प्लस बी बाई 2, एक कॉन्स्टेंट नंबर, तो d तो हो नहीं सकता। अब चलते हैं c की तरफ। c ऑप्शन कह रहा है a इज इक्वल टू माइनस बी, ए इज इक्वल टू माइनस बी, ये बन गया 2b बाई 2, वो बन गया b, क्यों, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल, और साथ में लिखा है c इज इक्वल टू 2b, बिल्कुल सही बात है, होगा, क्यों, क्योंकि ये बना था b, ठीक है, और ये बना था
2b दिया हुआ इक्वेशन में, तो ये 2b है, तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये भी बचेगा b। अब देखिए b cos 2 ओमेगा टी प्लस b sin 2 ओमेगा टी, क्या ये एक SHM होगा? साथ में ये वाला टर्म भी है, बताइए क्या ये एक SHM होगा? वी हैव वन मोर टर्म हियर। यस एवरीवन, यस इट वुड बी एन SHM बिकॉज सर देखिए ये तो कांस्टेंट है, ये तो एक कांस्टेंट आया है, इसको आप सर लिख दो कुछ भी, कोई साइन की वैल्यू होगी है, फिर से उसको अंदर डाल देना है ना ट्रिगोनोमेट्रिक यूज करके, ठीक है। तो ये एक SHM होगा, तो मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए अब चलते हैं बी ऑप्शन की तरफ। सो ए इज इक्वल टू बी गायब एंड सी इज इक्वल टू 2b बच गया, इसका मतलब बी भी सही होगा, ठीक है। अब चलते हैं ऑप्शन ए की तरफ। ऑप्शन ए कह रहा है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए पी सी सी इज नॉट 0, तो क्या ये वाला ऑप्शन होगा सही? क्या ये वाला ऑप्शन सही होगा? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बी सी, कि कोई भी वैल्यू ले लो ए बी सी की, कि SHM तो होने वाला है, ये 2 ओमेगा है, सॉरी ये 2 ओमेगा है, फ्रीक्वेंसी सेम है 2 ओमेगा, कि ए बी सी की कोई भी वैल्यू ले लो SHM हो जाएगा, क्या ये सही है? ये ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो ए और बी की कुछ भी वैल्यू ले लो आप, ठीक है, बट सी को 0 नहीं होना चाहिए। और ये क्यों लिखा है सी 0 नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर मान लो ए और बी की वैल्यूज मैं ऐसे लेता, जैसे 2 और 2 ले लेता कि ए इज इक्वल टू बी, तब क्या होता? तब ये वाला टर्म तो 0 हो जाता, और अगर सी भी 0 होता तो फिर ये ऑप्शन डी जैसी कुछ कहानी हो जाती, तो फिर से वो SHM नहीं हो पाता। इसलिए उन्होंने मेंशन कर दिया सी शुड नॉट बी 0, तो ए भी SHM के लिए वेरीफाई इक्वेशंस कंडीशंस हैं, ठीक है। चलिए तो ए बी सी ऑल 3 आर राइट आंसर। सर किसी के आंसर कैसे समझ में नहीं आता सर, प्लीज़ एक वीडियो यूट्यूब पर डालिए और बताइए इसके बारे में, किसी का आंसर कैसे दें, किसी का आंसर कैसे दें, तो इसके लिए आपको सीखना चाहिए कि सर की अप्रोच कैसे होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं किन दो को क्लब कर रहा हूँ, तो अप्रोच देखिए कि पहला स्टेप कहाँ से स्टार्ट किया जा रहा है क्वेश्चन का, ठीक है। ओके, सो now in this question A, B, C all 3 are correct answers, so D is the wrong answer, ठीक है। चलिए तो ये समझ में आना बहुत जरूरी है कि ये क्यों लिखा है उन्होंने कि C should be non 0, C 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। हेलो चंद्रा, यू आर ज्वाइनिंग लेट, कोई बात नहीं, अब से कंटिन्यू कर लीजिए। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरह, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन ही पढ़ा है, सॉल्यूशन बहुत छोटा है इसका। आई विल डिक्टेट द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज द फेज स्पेस डायग्राम, इस टर्म के बारे में घबराना नहीं है। फेज स्पेस डायग्राम, फेज स्पेस डायग्राम का मतलब होता है P वर्सेस X, मोमेंटम वर्सेस पोजीशन का कर्व फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज a circle centered at the origin. In the figure, the two circles represent the same oscillator but for two different initial conditions. And E1 and E2 are the total mechanical energies respectively. तो E1 और E2 के बीच में रिलेशन कैसा होगा, ये पूछा है हमसे। दिस इज सिंगल करेक्ट, ये मल्टीपल नहीं है, दिस इज सिंगल करेक्ट। यस तेजस, C. Devika says C is the right answer. Okay. So first answer I am getting from Devika. Let's see about others, what they think. Super researcher says B is the right answer. Okay, let's see. Super researcher एक बार फिर से ट्राई कीजिए। जयनाम का भी आंसर आ चुका है सी। सो देविका एंड जयनाम सेज सी इज द राइट आंसर। ओके, लेट्स सी। सो अभी तक तो मेजोरिटी में सी चल रहा है। थैंक्स अ लॉट अनुराग। This is A, this is 2A. तो
x का मैक्सिमम वैल्यू कितना जा रहा है a, इसमें x का वैल्यू कितना जा रहा है मैक्सिमम 2a, और वो क्या होता है मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड E2 हाँ स्मॉलर सर्कल का एनर्जी है, और E1 जो है वो बिगर सर्कल का एनर्जी है। सर C is the right answer, very good. So Saidul Diwan also says C is the right answer. Anurag says sir C. महरीन परवेज says C. रूपाली ने कहा B. चलिए B और C के बीच में फाइट चल रही है, मेजोरिटी गोज विद C. रूपाली और देविका ने कहा था B. ओके लेट्स सी हाउ टू सोल्व दिस क्वेश्चन। तो ये बेसिकली इसका एम्पलीट्यूड हो गया ना। एक बात बताओ, तेजस ने भी कहा C। चलो एक बात बताओ, ये जो A दिख रहा है क्या ये इस SHM का एम्पलीट्यूड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, बिकॉज दैट्स द मैक्सिमम पोजीशन, और मैक्सिमम पोजीशन को ही हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं, राइट। सो कैसे लिखेंगे E2 को? E2 वुड बी हाफ सम कांस्टेंट A स्क्वायर, ठीक है। और E1 को कैसे लिखेंगे? E1 वी विल राइट एज हाफ के 2a का होल स्क्वायर, बिकॉज टोटल एनर्जी है हाफ के a स्क्वायर, सो दिस विल बिकम हाफ के मल्टीप्लाइड 2a का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, राइट। ओके चलिए, नाउ यू टेक द रेशियो ऑफ दिस E2 by E1, E2 by E1, so that will become 1 by 4. I think it is visible. Yes, it is. So E2 by E1 is what? 1 by 4. So what is E1? 4 times of E2. So C is the right answer. So Devika and Rupali, you were wrong. E1 is equals to 4 times E2. चलिए कोई बात नहीं, at least you tried. Good. शायद आपने स्क्वायर नहीं किया होगा, आपने डायरेक्टली A और 2A डाल दिया होगा, पर फिर भी गलत तो नहीं आना चाहिए। हाँ फिर भी गलत ही आएगा, ठीक। I had said C sir. चलिए देविका, ओके फिर तो सही है, C अगर बोला है तो सही है। So C is the right answer. So how to use this app? तो बड़ा ही सिंपल है इस ऐप को यूज करना। आपको कोई डाउट है तो you can post a question here, and now we are live on Telegram also. So you can join our Telegram group. The link is t.me/instajee. ठीक है, so use that link. You will be access to all the PDFs, documents, everything. So basic actually इस क्लास का जो नोट्स है वो भी आपको मिल जाएगा उस ग्रुप पे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, अब एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, आगे बढ़ें। ये है अच्छा क्वेश्चन, ये देखते हैं कौन करता है। अगेन दिस कैन बी ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या है? सो एवरीवन इज रेडी विद दिस क्वेश्चन। चलिए, ए पार्टिकल मूव्स विद सिंपल हार्मोनिक मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सिंपल बात है। इन फर्स्ट t सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, हाईलाइट कर रहा हूं मैं इसको, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस a, and in next t second it travels to a in the same direction. Then we have 4 options. So which option is correct? ठीक है, ये मैंने लाइन को हाईलाइट किया है, कुछ इंपॉर्टेंस होगा इसका इसलिए, ठीक है। That we have 4 particles, we have a particle which is moving along a straight line. It is executing simple harmonic motion starting from rest. In first t second it covers a distance a, in the next t second it covers a distance 2a. So what all options are correct? Manish, hi. Hello Prince, you are late guys. Sir, D is the right answer. अच्छा, so it can be a multiple choice question. You can have more than one answer correct. D होगा सर, मनीष ने आते ही आंसर दे दिया, बहुत शानदार, उम्दा परफॉर्मेंस।
ओके, सुपर रिसर्चर्स ने कहा सर ए एंड बी, रूपाली ने कहा सर ए। सो इस पे तो काफ़ी अलग अलग व्यूज आ रहे हैं, कोई कह रहा है ए, कोई कह रहा है बी, कोई कह रहा है डी। ओके, सुपर रिसर्चर ने अपना आंसर चेंज कर दिया है। सुपर रिसर्चर्स नाउ सेज ए एंड डी बोथ। सर मल्टीपल चॉइस नहीं होगा इसमें। ओके सादुल, लेट्स सी। सुपर रिसर्चर तो अपना आंसर चेंज ही किया जा रहा है, सी एंड डी। राम वानखड़े, आंसर इज डी। ठीक है, इट कैन बी ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन राम, मतलब इट कैन हैव मोर देन वन आंसर करेक्ट। चलिए, shall I solve this question now? I guess enough time given. Okay. अरे सुपर रिसर्चर भाई एक आंसर दो प्लीज। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। मैंने इस लाइन को हाईलाइट क्यों किया था, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि पार्टिकल ने अपना मोशन कहाँ से स्टार्ट किया है। पार्टिकल इज स्टार्टिंग द मोशन फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। समझ में आई बात? द पार्टिकल इज स्टार्टिंग द मोशन फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, नहीं मीन पोजीशन नहीं, मीन पोजीशन पे ट्राइंग, जैनाम इज ट्राइंग। चलिए कोई बात नहीं जैनाम, नाउ यू कैन सी हियर, वी विल सोल्व दिस क्वेश्चन। सो इफ पार्टिकल इज स्टार्टिंग द मोशन फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन तो कैसा होगा देखते हैं। इक्वेशन कैसे लिखेंगे एसएचएम का? इक्वेशन होगा कुछ इस तरह का, x इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा t। यस और नो? हाउ मेनी पीपल से इक्वेशन इस तरह का होगा? समझ में आया सभी को? चलिए, x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। अब देखिए, अगर इस तरह का एसएचएम होगा, नाउ वी विल यूज ऑल द गिवन इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे एक डायग्राम जरूर बनाना है आपको। एसएचएम का कोई भी क्वेश्चन हो, अगर डाउट आ रहा हो, डिफिकल्ट लग रहा हो, तो डायग्राम बनाओ, चीजें थोड़ी सी दिखने लगती है। दिस इज x इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज x इज इक्वल टू प्लस a। ठीक है, अब देखिए x is equal to 0, x is equal to plus a. Now initially particle is covering a distance a in t second, तो ऐसे आया होगा, this is a। ठीक है, and now सर साइन क्यों नहीं होगा कोस की जगह? अभी बताते हैं, एक सेकंड रुको। नेक्स्ट टी सेकंड में पार्टिकल ने डिस्टेंस कवर किया 2a, तो यहां पर आने में लगा टाइम t और यहां तक आने में लगा टाइम 2t। अब चलिए सब लोग इक्वेशन लिखने का ट्राई कीजिए। Yes, okay. So now you see this question कि 2a और a डिस्टेंस है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि पहले x की वैल्यू क्या लिखेंगे इस कंडीशन के लिए? इस कंडीशन के लिए लिखेंगे a माइनस a। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ x? कैपिटल A माइनस स्मॉल a माइनस a इज इक्वल्स टू कैपिटल A, और इस कैपिटल A को मैं डिवाइड में लिख रहा हूँ ऐसे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इज इक्वल टू कोस ओमेगा t। ठीक है, टाइम कितना लगा t। ओके, नाउ दिस इज a माइनस 3a डिवाइडेड बाय कैपिटल A। दिस इज इक्वल्स टू कोस ओमेगा t। इज इज क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, चलिए अब देखते हैं। नाउ यू कैन डिवाइड दिस टू इक्वेशंस, और उसका एडवांटेज क्या होगा? अच्छा, इसका फ्रीक्वेंसी क्या था? इसमें यहां पे 2 ओमेगा t आएगा बिकॉज दिस टाइम इज 2t।
यस और नो, दिस टाइम वुड बी 2t। अब देखिए नाउ अगर डायरेक्टली डिवाइड कर दे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पे तो a और a में एक इक्वेशन है, कैपिटल A और स्मॉल a में, बट दिस साइड वी हैव cos ओमेगा t एंड cos 2 ओमेगा t, तो वो कैंसिल आउट नहीं होंगे। सो नाउ टू कैंसिल आउट दैट टर्म व्हाट विल आई डू, फर्स्ट आई विल राइट दिस एज 2 cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस 1, 2 cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस 1, करेक्ट। चलिए अब देखते हैं। अच्छा, किसी ने साइन क्यों नहीं होगा ये पूछा था। साइन इसलिए नहीं होगा बिकॉज पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, और पार्टिकल अगर रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है दैट मीन्स इनिशियली इट वाज एट एक्सट्रीम पोजीशन। सो इक्वेशन क्या लिखेंगे, x साइन x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस पाई बाय 2। ठीक है, वाई पाई बाय 2 फेज डिफरेंस है ऑलरेडी, दैट इज द इनिशियल फेज पाई बाय 2। ठीक है, ओके। सो नाउ आई विल पुट दिस cos ओमेगा t वैल्यू हियर फ्रॉम दिस इक्वेशन यहाँ पे। तो क्या इक्वेशन आएगा देखते हैं। This will become a minus 3a divided by capital A. ठीक है, and this would be equals to what? This would be equal to 2 times cos square omega t, that is this a minus small a divided by capital A whole square minus 1. So this is the final equation. Okay, so I'll explain this once again. a minus a upon a कैसे लिखा, आफ्टर टाइम t द लोकेशन इज कैपिटल A माइनस a, ये वाला लोकेशन कैपिटल A माइनस a, एंड आफ्टर टाइम 2t द लोकेशन इज a माइनस 3a, दिस डिस्टेंस। तो ये वाला इक्वेशन, ठीक है। और यहां से cos 2 ओमेगा t था, सो आई विल यूज द फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यू विल गेट दिस इक्वेशन। एंड यहां से आप सोल्व करोगे, सो सब लोग पहले ये इक्वेशन नोट डाउन कर लो, ठीक है। यहां से यू कैन सोल्व दिस इक्वेशन, राइट, यू विल गेट द आंसर ऑफ कैपिटल A इन टर्म्स ऑफ स्मॉल a, थोड़ा क्वाड्रेटिक होगा। आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन यू विल गेट दिस। तो एक तो आपका आंसर आएगा A, ठीक है, कि एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन 2a आएगा, ठीक है। एंड जब आप वो वैल्यूज यूज करोगे ओमेगा फाइंड करने के लिए, कैसे करेंगे वो ओमेगा फाइंड करने के लिए वैल्यूज यूज, वो वैल्यूज यूज करनी, देखो यहाँ पे जो भी आपका a का वैल्यू है यहाँ डाल देना, ठीक है, और वहां से ओमेगा t का वैल्यू आ जाएगा, और उस ओमेगा t से आप ओमेगा की वैल्यू t के टर्म से फाइंड आउट कर सकते हो, और वो होगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है। सो a एंड d आर द राइट आंसर। क्लियर, यस ऑल ऑफ यू। चलिए, सो A एंड D आर द राइट आंसर्स। ओके, क्लियर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एक सिंपल क्वेश्चन है, जेई मेंस का क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन। हेलो गुरदीप। सो ए पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द एम्पलीट्यूड A. The speed is made 3 times at the instant when it is at a distance of 2a by 3 from the mean position. The new amplitude of the motion is, मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा था, ठीक है, ऐसे मीन पोजीशन के अबाउट, और अचानक से क्या हुआ कि जब वो 2a by 3 पे था तो उस टाइम पे उसका स्पीड कितना कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया। तो पूछ रहा है कि नया एम्पलीट्यूड क्या होगा, ठीक। अब ये नहीं जाना कि कैसे इंक्रीज किया, तो वो तो फोर्स वाला कुछ इंक्रीज कर दिया उस इंस्टेंट पे। अब ये पूछा है कि अगर हमने स्पीड को 2a by मतलब इस 2a by 3 पोजीशन पे स्पीड को इंक्रीज कर दिया 3 टाइम्स, तो नया एम्पलीट्यूड क्या होगा उस SHM का। तो ट्राई करो सब लोग क्वेश्चन। ओके क्षितिज, बेस्ट ऑफ लक, यू गो फॉर द मैथ्स प्रैक्टिस। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिंपल पेंडुलम से कुछ क्वेश्चंस लेंगे, तो रिवाइज करके आना सब लोग सिंपल पेंडुलम पे क्वेश्चंस, और थोड़े बहुत स्प्रिंग प्रॉब्लम्स भी ले लेंगे। 7a by 3, जैनम से 7a by 3। चलिए जैनम का आंसर यहां लिख देते हैं 7a by 3। √3a, सुपर रिसर्चर सेज √3a।
वो भी लिख देता हूं यहाँ पे √3a। Anyone else? √41a/3, √41a/3। जयनाम ने अपना आंसर चेंज कर लिया है कि ये नहीं होगा, ठीक है, फाइनल है, ठीक है। 6a/3 मनीष सेज दैट मीन्स 2a। चलिए मनीष सेज सर 2a। देविका ने कहा सर 3a, और अभिषेक ने लिखा एक स्माइली, कोई बात नहीं, वो भी अच्छा है, स्माइल करते रहो। 6a/3, हाँ मतलब वही 2a लिख दिया, मतलब कॉपी पेस्ट अच्छे से करो, उसको 2a लिख दो। चलिए, तो किसी का आंसर 2a आ रहा है, किसी का √3a आ रहा है, किसी का √41a/3 आ रहा है। सर मैंने भी तो 7a/3 बोला है, ठीक है सादुल, लेट मी राइट 7a/3 विच इज ऑलरेडी हियर, ठीक है 7a/3। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। वेलोसिटी का पहले तो फॉर्मूला लिख दो, ठीक है। अब कहां पे है, x इज इक्वल टू 2a/3 पे है, तो क्या होगा फॉर्मूला में, v इज इक्वल टू, या फिर सिंपली यहां पे x की जगह क्या डाल देंगे 2a/3, तो 2a/3 डालने में क्या बनेगा 4a² 9, ठीक है, और 9 4a² 9, यहां ले आओ 9 को, 9a² माइनस 5a², नीचे आ जाएगा 9, तो क्या बनेगा 5a² 9। समझ में आया ऐसे भी बात। v इज इक्वल टू ओमेगा √a² माइनस 4a² 9, इसको आप लोग यहां पे डालोगे तो क्या आ जाएगा 5a² 9। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। a/3 आ रहा है प्रवीण का, प्रवेश का, अभिषेक का आ रहा है 6a/3। आगे चलते हैं। अब वेलोसिटी को कर दिया 3 टाइम्स 3v, कब किया 2a/3 पे किया, तो ओमेगा तो सेम होगा, ठीक है, ओमेगा तो सोर्स की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब a² जो नया एम्पलीट्यूड है, a0 बोल देते हैं इसको, a0² माइनस 4a² 9, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करने पे क्या बनेगा 1/3 इज इक्वल टू रूट के अंदर, चलो नए बोर्ड पे लिखते हैं इसको अच्छे से, तो ये बनेगा 1/3 इज इक्वल्स टू रूट 5a² 9 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a0² माइनस 4a² 9, ठीक है। नाउ वी कैन टेक स्क्वायर हियर। सर हिंदी में क्वेश्चन लिखें, ठीक है, मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब हो गया सरल आवर्त गति, ठीक है, सरल आवर्त गति एक पार्टिकल कर रहा है, ठीक है। और अब देखिए कि यहाँ पे 1/3 अनुपात आ गया, अनुपात मतलब रेशो, ठीक है, और ये स्क्वायर रूट को तो शायद स्क्वायर रूट ही बोलते होंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, यानी कि वर्ग कर देंगे दोनों तरफ, तो वर्ग करेंगे तो कैसा होगा 1/9 इज इक्वल्स टू 5a²। जरा ध्यान से देखिए, इफ आई डू स्क्वायर हियर एंड इफ आई टेक एलसीएम हियर, दिस विल बिकम 9a0² माइनस 4a², तो ये नीचे बनेगा केवल 9a0² माइनस 4a², और 9 कहाँ चला गया, 9 हो गया कैंसिल आउट, यहां भी 9, यहां भी 9, और ये हो गया 1/9। समझ में आया, ठीक है, थैंक्स सर। अब आप खुद इंग्लिश यूज कर रहे हो, देखो ये तो गलत बात हुई, धन्यवाद श्रीमान ऐसे लिखिए आप। So this is 1/9 is equals to 5a² divided by 9a0² minus 4a². Now you can solve this equation. This will become 9a0² minus 4a² is equals to 45a². तो यहाँ से क्या आएगा, this will become 49a² is equal to 9a0². हमें निकालना था a0². So a0² आ जाएगा 49a² divided by 9 and this will become 7a/3, जो कि जयनाम ने पहले सही दिया था, उसके बाद उसने अपना आंसर बदल लिया, ठीक है। तो 7a/3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। धन्यवाद गुरुजी। चलिए बहुत बहुत आभार है आपका।
तो एक क्वेश्चन समझ में आया सभी को? सो a नोट इज इक्वल टू 7a/3, ठीक है। सो दिस 7a/3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, और जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। एक मास है, इट इज अटैच्ड टू ए हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग, एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड a1. When the mass capital M passes through its mean position, then a smaller mass m is placed over it, and both of them move together with amplitude a2. The ratio of a1 by a2 is. ठीक है, अब जो हिंदी में सुनना चाहते हैं उनको हिंदी में बता देता हूँ कि एक द्रव्यमान है जिसका मास है कैपिटल M, जिसका द्रव्यमान है कैपिटल M, दोनों एक साथ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग से एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग से अटैच्ड हैं। अब क्या किया, वो सरल आवर्त गति कर रहा है, उसका आयाम कितना है a1. When the mass capital M passes through its mean position, ठीक, तो जो छोटा मास है स्मॉल m वो उसके ऊपर रख दिया, कैपिटल M के ऊपर स्मॉल m रख दिया। अब दोनों एक साथ घूमने लगे, तो बताया, तो पूछा है कि जो a2 होगा और जो पुराना a1 था, यानी कि दोनों जो आयाम होंगे उनका अनुपात क्या होगा, ये पूछा है। तो आयाम का अनुपात पूछा है आपसे। इतना बस हिंदी थोड़ा बहुत आता था, मैंने बता दिया। कुछ एक टर्म्स थे वो मैंने इंपॉर्टेंट टर्म बता दिया। एम्पलीट्यूड मतलब आयाम होता है, SHM मतलब सरल आवर्त गति। अब इस क्वेश्चन में करना क्या, मैं आपको बता देता हूं। जब पहले क्या लिखोगे आप, अच्छा इसमें कोई अप्रोच क्या होगी, एक क्या डी इज द राइट आंसर। अच्छा राइट आंसर भी आ चुका है डी। तो देखिए इसमें सिंपल अप्रोच आपकी ये होनी चाहिए कि मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, ठीक है। तो m1v1 इज इक्वल टू m2v2, कि पहले जो मोमेंटम था वो बाद वाले मोमेंटम के इक्वल होगा। नाउ व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम, तो इनिशियली होगा मोमेंटम कि मीन पोजीशन पे था, ठीक। तो मास था कैपिटल M, वेलोसिटी हो जाएगा a ओमेगा, ठीक, ओमेगा 1 लिख दिया कुछ, और इनिशियली एम्पलीट्यूड इज a1। और बाद में क्या होगा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m, वेलोसिटी हो जाएगा a2 ओमेगा 2, ठीक है। एंड व्हाट इज ओमेगा 1 हियर, स्क्वायर रूट ऑफ k बाय m, एंड व्हाट इज ओमेगा 2 हियर, स्क्वायर रूट ऑफ k बाय कैपिटल M प्लस m। तो यहां से बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल M प्लस m, और यहां से बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल M। तो a1 अपॉन a2 कितना आएगा, a1 अपॉन a2 वुड बी स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल M प्लस स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M। तो दिख रहा है ऐसा कोई ऑप्शन, सो दैट इज ऑप्शन डी। तो जय नाम का सही आंसर था। तो बहुत ही सिंपल था ये, मनीष ने भी सही आंसर दिया, साइदुल हैज आल्सो गिवन द सेम आंसर। सो और उसके बाद में सुपर रिसर्चर ने गलत आंसर दिया, महरीन परवेज ने गलत डी दिया था, दैट इज करेक्ट। जैन ने भी सही आंसर दिया था। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, एंड नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। आई विल बी कमिंग अप विद मोर क्वेश्चंस लाइक दिस, ठीक है, और सिंपल पेंडुलम पे भी कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। एंड वंस अगेन दिस इंफॉर्मेशन फॉर यू, आवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल t.me/instaJEE. Join this group to get more updates about the PDFs and document related to the class. ठीक है, so that's all for today. Thank you so much. Bye bye. Good night. Enjoy.